Hello and welcome to another episode of Legal Update. The topic for discussion is jurisdiction for quashing FIRs and charge sheets. Why in news? Recently, the Supreme Court in the case of Pradnya Pranjal Kulkarni versus State of Maharashtra and ANR set aside Bombay High Court's order and clarified the jurisdictional framework for quashing FIRs, charge sheets and cognizance orders under various legal provisions. Background of the case. The petitioner filed a writ petition before the Bombay High Court under Article 226 of the Constitution of India and Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023, seeking quashing of an FIR registered under Sections 420, 406 and 409, read with Section 34 of the Indian Penal Code. During the pendency of the writ petition, police completed investigation and filed a charge sheet before the trial court on 14th May 2025. The Bombay High Court dismissed the writ petition on 1st July 2025, holding it had become infructuous after the filing of the charge sheet. The petitioner approached the Supreme Court through a special leave petition challenging the Bombay High Court's order. Court observations. The SC bench, comprising Justices Dipankar Datta and Prashant Kumar Mishra, noted a distinct factual dissimilarity between the present case and Neeta Singh, emphasizing that the division bench of the Bombay High Court misread Neeta Singh, inadvertently omitted to notice that factual dissimilarity as indicated above, and consequently misapplied the ratio of that decision. The court observed that in Neeta Singh, the writ petition was filed only under Article 226 of the Constitution and cognizance had already been taken by the criminal court, making the petition infructuous. However, in the present case, the petition invoked both Article 226 and Section 528 BNSS, and it was unclear whether cognizance had been taken by the magistrate. Article 226 of the Constitution of India. Article 226 is located in Part 5 of the Constitution and grants High Courts the power to issue writs. Key provisions. Article 226 Clause 1. Every High Court can issue writs and orders to any person or government for enforcing fundamental rights and other purposes. Article 226 Clause 2. High Courts can issue writs to persons or authorities within their territorial jurisdiction or outside their jurisdiction if the cause of action arises wholly or partly within their territory. Now, let us look at a practice question. In the Indian Constitution, which article grants High Courts the power to issue writs? A. Article 32, B. Article 226, C. Article 35, D. Article 123. Please provide your answers in the comment section. FIR और आरोप पत्र रद्द करने का अधिकार क्षेत्र। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रज्ञा प्रांजल कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत FIR, आरोप पत्र और संज्ञान आदेशों को रद्द करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी ढांचे को स्पष्ट किया। आइए अब जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि के बारे में। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 420, 406 और 409 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस ने जांच पूरी की और 14 मई 2025 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 2025 को रिट याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह निष्फल हो गई थी। याचिकाकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वर्तमान मामले और नीता सिंह के बीच स्पष्ट तथ्यात्मक असमानता का उल्लेख किया तथा इस बात पर जोर दिया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नीता सिंह सुप्रा को गलत पढ़ा, अनजाने में ऊपर बताई गई तथ्यात्मक असमानता को नोटिस करना छोड़ दिया और परिणाम स्वरूप उस निर्णय के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया। न्यायालय ने कहा कि नीता सिंह मामले में रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ही दायर की गई थी और आपराधिक न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान ले लिया गया था, जिससे याचिका निष्फल हो गई। हालांकि वर्तमान मामले में याचिका में अनुच्छेद 226 और धारा 528
BNSS दोनों का आह्वान किया गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था या नहीं। आइए अब जानते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 संविधान के भाग 5 में स्थित है और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं अनुच्छेद 226(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति या सरकार को रिट और आदेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालय निम्नलिखित व्यक्तियों, प्राधिकरणों को रिट जारी कर सकते हैं: अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर, या यदि वाद का कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उनके क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है तो यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।